Hello teachers and students, I am Amit Arora from EcoVisionaire. Today I will be giving you some tips on project work that includes project file and Viva. You all are aware it is impossible, ये बहुत मुश्किल है कि हम 100 on 100 score कर लें या 100% marks score करें if we are unable to score 20 on 20 in the project. तो some of the tips are common to all subjects जो हम यहाँ बोल रहे हैं वो सब common to all subjects हैं, but कुछ specific tips हैं only for economics and political science students. So let us start. As per CBSE guidelines, we have for economics and business studies we have 12 marks for file and 8 marks for Viva, whereas in pol science we have 10 marks for Viva and 10 marks for file. And one thing we should all know, in political science we have group project, but in eco we only have individual projects. So in economics, one thing more you should understand, in economics, the 20 marks are totally in the hands of external examiner, whereas in political science, both internal and external examiners will be awarding marks. One new thing this year, CBSE has appointed an observer to every school who is appointed actually to make sure that practicals are done in a fair, they are conducted in a fair manner. So be very careful, students. And is over going to keep a watch on your everything which you do during your Viva. So let us start with the mark distribution. The project work, the first 3 marks are for relevance of the topic. इसका मतलब ये relevance का मतलब हुआ कि मेरा जो project work है, मेरा जो project का topic है, क्या वो मेरे कोर्स से लिंक्ड है इस साल? तो जो टॉपिक आपने लिया है, यूजुअली सबने अपने कोर्स से लिंक की टॉपिक लिया होगा, आई एम श्योर. तो उसके 3 मार्क्स हम उसको 3 मार्क्स वी अवार्ड टू द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन अ रेलेवेंट टॉपिक, एंड आई एम श्योर एवरीबडी हैज टेकन अ रेलेवेंट टॉपिक दिस ईयर. सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 6 मार्क्स इज फॉर योर नॉलेज, योर कंटेंट एंड रिसर्च. हेयर द एग्जामिनर, इसमें एग्जामिनर आपको किस पे जज कर रहा है कि आपने कितनी रिसर्च की है. क्या आपने सेम टेक्स्ट बुक का मैटर कॉपी कर दिया है? मैंने मनी लिया और मनी बैंकिंग मेरा एक चैप्टर है और मैंने बहुत सारी बुक्स रेफर की और वहाँ पे बुक्स का सारा लिख दिया. दैट इज नॉट अ रिसर्च वर्क. सो हेयर द टीचर शुड एक्चुअली, ही विल और ही शी विल बी चेकिंग योर कंटेंट कि वो ओरिजिनल है कंटेंट, कहीं से ठीक सी जगह से लिया है कि बुक से ही कॉपी कर दिया है, और आपको क्या कोई नॉलेज है अपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, कुछ आपने टॉपिक जो लिया उसके बारे में कुछ नॉलेज आपकी गेन हुई है आपके प्रोजेक्ट वर्क में. दैट इज वेरी वेरी 6 मार्क्स उसके लिए हमारे को 6 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं फॉर दैट, एंड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइल. थर्ड, विच इज ऑफ कोर्स योर प्रेजेंटेशन टेक्निक एंड क्रिएटिविटी. एक ही चीज को हम 3 या 4 तरीके से दिखा सकते हैं. एक बच्चा सेम चीज बहुत ही वेग तरीके से लिखता है, दूसरा बच्चा उसे बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है. सो योर प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी विल हेल्प. तो फाइल में आपकी प्रेजेंटेशन and your creativity will be seen, which will include how you present your data, how you have put the headings, pictures कैसे paste किए हैं आपने, tidy way में है, टेढ़ी तो नहीं है, it's all neat work. So 3 marks for that. So here we have 12 marks for all this except Viva. We'll talk about Viva later in the video. So this is project work with project file with 3 marks for relevance of the topic. Knowledge, content, research, this is very important, that is 6 marks. And then presentation technique and creativity, that is your handwriting and neatness, and also how you have presented your data and how you have underlined your points and the presentation, that is 3 marks. So let us start now. What is the checklist, expected checklist? If I am the examiner, what I am looking in the file, मैं इस फाइल में क्या क्या देखना चाहता हूँ. मैं एग्जामिनर हूँ, मैं आया हूँ, मेरे हाथ में फाइल आई है, तो मैं उस फाइल में क्या क्या देखना चाहूँगा. सबसे पहले मैं टॉपिक देखना चाहूँगा और उसका टाइटल क्लियरली रिटन. लाइक एन एग्जाम्पल, इन पॉल साइंस आई हैव टेकन, द स्टूडेंट हैज टेकन वेनेजुला क्राइसिस. सो द वेनेजुला क्राइसिस टॉपिक शुड बी क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फर्स्ट पेज. वो साफ दिखाई देना चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स मे बी. So that has to be the first thing which I notice will be the topic and the title. Second, I'll be seeing the causes, I'll be seeing the consequences and remedies. अब इसको एक एक पार्ट में लेते हैं. causes, for example, अगर मैंने वेनेजुला क्राइसिस लिया है टॉपिक, I have taken वेनेजुला क्राइसिस as a project work. So what has caused this crisis?
वेरी क्लियरली मेंशन कि मैंने क्या क्या कॉजेज इन पॉइंट्स, कॉजेज क्या दिखाने हमने इन पॉइंट्स, चाहे तो एक पेज में एक कॉज होता है, वन कॉज कैन टेक वन पेज, वन शीट कैन बी वन कॉज, एंड देन कॉजेज मीन्स कारण, हमारे कारण, इस क्राइसिस के कारण क्या है। और अगर हमने इकोनॉमिक्स में लिया है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सो अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर कॉजेज क्या है, सो वो आपको एक एक शीट पे एक कॉज या दो कॉजेज एक शीट पे हम लिख सकते हैं। देन कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट्स, उसका इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, जैसे अब आपने वेनेजुला क्राइसिस की बात की या हमने बात की यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स, उनके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे उस पर, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने कॉन्सिक्वेंस देखने हैं, उनके रिजल्ट्स। थर्ड इज रेमेडीज, आप सिर्फ प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम को सिर्फ बता नहीं सकते, आप प्रॉब्लम की रेमेडी भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या किया है, मैंने प्रॉब्लम ली अनएम्प्लॉयमेंट की, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, तो आपकी सॉल्यूशन क्या होगी आपकी साइड से। वी आर ऑल्सो सर्चिंग एज एन एग्जामिनर, आई विल बी सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन गिवन बाय माय स्टूडेंट और नॉट। अगर सिर्फ प्रॉब्लम छोड़ दी है लिख के तो नहीं चलेगा, हमें सॉल्यूशन देनी पड़ेगी उसकी। देन नेक्स्ट, वेरियस स्टेक होल्डर्स इन योर फाइल, आई विल बी सीइंग वेरियस आपके टॉपिक में जो स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रॉब्लम का उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है, वो मेरी फाइल वर्क में जरूर होना चाहिए। जैसे फिर मैं आपके एग्जांपल लूंगा, अगर मैंने यूएस चाइना ट्रेड वॉर लिया है तो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं यूएस अमेरिका, देन वी हैव चाइना एंड वी हैव अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन तीनों पे ट्रेड वॉर्स का क्या इफेक्ट हुआ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। स्टेक होल्डर्स, आप किसी प्रोजेक्ट वर्क में हमने मेक इन इंडिया लिया होगा तो इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स। तो उन स्टेक होल्डर्स पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर, वो आपको जरूर, सो कंट्रीज भी स्टेक होल्डर्स होती हैं तो वो हमें वहां पे जरूर मेंशन करना है, उन पे ऊपर इफेक्ट। फोर्थ इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, स्पेसिफिक टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें उनके फायदे और नुकसान दोनों आ जाते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सब लोग लेते भी हैं, यहाँ टैक्सेस इन इंडिया विद स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं उस फाइल में क्या देखूंगा, आई विल सी उसके एडवांटेजेस लिखे हैं आपने जीएसटी के, क्लियरली मेंशन्ड, और क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इनकन्वीनियंसेस हैं, वो आपको वहां पे जरूर मेंशन करनी है आपको। सिमिलरली किसी ने पॉलिटिकल साइंस में ग्लोबलाइजेशन लिया हुआ था हमारे एक बच्चे ने, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल में जरूर होने चाहिए। देन दिस आई ऑलरेडी डिस्कस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर आपने किसी प्रॉब्लम की बात की है, किसी अच्छी बात, उसमें कोई अच्छा टॉपिक भी लिया है, तो उसमें भी क्या होता है, उस टॉपिक जो इट्स एनी पॉजिटिव थिंग, उसका शॉर्ट टर्म मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और वर्टिकल गार्डनिंग और से यूएस चाइना ट्रेड वॉर ओनली, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन चाइना यूएस और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी और चाइना एंड यूएस, दैट हैज टू बी मेंशन्ड in my file. That is very important. Then sixth, now we come to the stats part और data part. एक तो data दिखना बहुत ज़रूरी है, is the most important part, क्योंकि data is economics, economics is data. So data left side पे हम paste करते हैं या हम अपने हाथ से data copy करते हैं। तो अगर हम data लिख रहे हैं तो वो एक reliable source होना चाहिए और data appropriate होना चाहिए। राइट में कुछ और लिखा हुआ है और लेफ्ट में data कुछ और शो कर रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो जो आप राइट में लिख रहे हैं उसी का डेटा आप लेफ्ट में लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात कर रहे हैं राइट साइड में थ्योरी पार्ट में, तो लेफ्ट में आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वेरियस कंट्रीज पेस्ट करना है। तो इट हैज टू बी रिलायबल सोर्स से, न्यूज़पेपर कटिंग है, सोर्स मेंशन्ड है और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, सेंसस है, एनएसएसओ है, उनका डेटा आपने वहां पेस्ट कर दिया। देन वी हैव प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग। सबसे कहते हैं ना, इंप्रेशन जमाना हो तो अपनी हैंड राइटिंग, अब तो इस टाइम पे राइटिंग ठीक नहीं होगी पर हैंड राइटिंग क्लियर हो सकती है, साफ हैंड राइटिंग, और प्रेजेंट बहुत अच्छा, कुछ लोग प्रेजेंट अच्छा करते हैं, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। सो प्रेजेंटेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली जिस जो एंड में अच्छी प्रेजेंट कर गया चीज़ को, वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। और लास्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, एंड में यू कैनॉट लीव द प्रोजेक्ट लाइक दैट।
You have to address and in the end the concern. As a student of class 12th, what do you think, what do you conclude, and what are your suggestions? कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर या वेनेजुला क्राइसिस आपने लिया, या आपने कोई इंडिया का टॉपिक ले लिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, या आपने अदर एनी अदर प्रॉब्लम यू हैव एड्रेस, तो आपका सॉल्यूशन तो दीजिए. इफ जीएसटी इज नॉट गुड, इफ डीमोनेटाइजेशन वाज नॉट गुड, योर सजेशंस एंड कंक्लूजन हैज टू बी देयर. सो एज एन एग्जामिनर आई विल चेक all these 8 things in your file, and then you will be getting 12 marks on 12. So now the next part is Viva. Viva, again, very simple things about Viva I will be telling you. Now you're sitting in the front of the examiner and don't panic. सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था आपको कि पैनिक नहीं करना है. No anxiety. You will do very good because as CBSE guidelines कहती हैं 90% of 90 to 95% of the questions will be asked from the project file. So it is advised कि भैया 3 बार 4 बार अपनी फाइल को ठीक से थॉरली पढ़ लो. ये बड़ा ऑड लगेगा कि मैंने फाइल तो बना दी है, जब क्वेश्चन आया तो उस फाइल के अंदर से उसने एग्जामिनर ने फाइल खोली, अंदर से एक पॉइंट पढ़ लिया, बेटा व्हाट इज रेपो रेट, एंड द चाइल्ड डजंट नो व्हाट इज रेपो रेट. सो दैट इज नॉट एक्चुअली वैलिड कि आप उस चीज को बता ही ना पाओ. तो इसका मतलब फाइल आपने बनाई नहीं है. तो आप वो फाइल को थॉरली पढ़ लीजिए, and 95% of the questions are from that file. You will be able to answer. Second, कितनी बार बच्चे बहुत सारी चीजें ऐसी लिख देते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं होती हैं, पर ऑफ कोर्स रिसर्च वर्क में उनको वो टर्म्स कहीं ना कहीं मिल जाती हैं. एक बच्चे ने किया सीरिया क्राइसिस, सीरिया में क्राइसिस जो हुआ, प्रॉब्लम सिविल वॉर इन सीरिया, तो उसने वहां पे एक टर्म लिखी कि अरब स्प्रिंग. क्या लिखा? अरब स्प्रिंग. ही शुड नो व्हाट इज अरब स्प्रिंग. एक बच्चे ने किया बैंकिंग किया, सेंट्रल बैंक पे किया, और उसने वहां लिख दिया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए व्हाट इज एमएसएफ. तो क्योंकि टीचर्स दे आर वेरी स्मार्ट, व्हेन दे रीड दीज थिंग्स व्हिच आर नॉट इन बुक्स, so they will ask you the same question, they will surely ask you that question. So be prepared, उसको ठीक से प्रिपेयर करना. बेटा नेक्स्ट, लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. कितनी बार हम क्या करते हैं, हम बड़ी एक्साइटमेंट जल्दी में होते हैं कि वी नो एवरीथिंग. तो क्या होता है, उसने पूछा बैंकिंग में पूछा आपसे गिव 2 quantitative measures. You instantly you replied, yes ma'am, margin requirements and moral suasion. बेटा उसने qualitative आपने बोल दिया, उन्होंने quantitative पूछा था. तो take a few seconds and then reply. You will surely get the correct answer. Speak clearly, loud enough. The examiner has to hear what you are saying. He should not say, beta repeat. You should be loud enough to, don't shout, but be loud enough to let the examiner hear what you are saying. Yeah, very very important point. If the questions are asked in groups, answer only when the examiner asks you to do. बीच में इंटरप्ट नहीं करना, मैं बता दूं नहीं. When others are unable to answer, then very politely say, may I? कितनी बार कॉमन टॉपिक्स होते हैं तो हम बोलते हैं चारों बच्चे साथ में आइए, मनी सबने लिया हुआ है तो हम सबसे पूछ लेते हैं एक साथ. तो जो बच्चा ज्यादा इंटरप्ट करेगा तो वो बैड इंप्रेशन, इट विल बी अ वेरी बैड इंप्रेशन. सो बी वेरी केयरफुल. Try to answer all the questions. Being non-responsive is actually not knowing the answer. So try to give something related to the topic that makes sense. Be polite and show respect. That means when you come inside, greet the examiner, say good morning ma'am, good morning, good afternoon sir. And when you go, even if you're not able to answer and it's a bad Viva, say thank you ma'am, thank you sir. I think we have covered almost everything which is important for a student to appear in Viva. So anything else you want, these are some examples. You can pause the video and then see these questions on Make in India, money, and crisis in Syria. Also be in touch. We have our app. You can download all these things from our app. A very simple procedure. And don't miss our online app tests. Every Saturday, Sundays, we have online tests and contests for students. All the best. Thank you. I'd also like to thank Mr. Kunal Dua for helping me make this video. All the best for your board examination. Bye.